इज इट स्टार्टेड? पीपीटी का पहला पेज दिखाइए। हेलो। हेलो। whoever is sharing the पीपीटी का पहला पेज दिखाइए। No, first page about the syllabus. First page, is it pronoun? No. Yes, the syllabus. Can you please zoom it, or it is in this format only? Okay. So let's discuss about the syllabus of English. Whatever it is going to be asked in your BA entrance in English. Okay. Uh, First of all, the PPT is not visible to me. Okay. Uh, there are questions from synonyms, antonyms, one word substitution, fill in the blanks, misspell, error in the sentence. Uh, Sorry, due to the problem in network, the phone get disconnected. Okay. Can you please zoom it? Is it available in this format only? I am trying to show PPT. But I actually, am trying to. Madhav, people are not getting this. Actually, I am too unable to. Okay, okay. You can take your time.
Hello, student. So we will share the PPT in the group later on. Let's start. Okay. Uh, the syllabus is you will be asked synonyms It is about. is it seen, ma'am? No, it is not visible properly. Okay, okay. Let it be. Let it be. I am starting. Just open the PPT. Okay. सो बच्चों आप लोगों को सिनोनिम्स पूछे जाएंगे एटलीस्ट 4 से 6. ओके. देन आपको एंटोनिम्स पूछे जाएंगे एटलीस्ट 4 to 6. देन यू विल बी आस्क्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. there will be about 4 to 5 questions in it, and then you will be asked about the fill in the blanks. Okay. There will be parts of speeches in it. Okay. And most probably the questions will be asked from verb and prepositions. There will be misspelling about 2 to 3 questions, and there will be error in the sentences. I have discussed it earlier about 2 to 3 questions. Then there was a pattern of reading comprehension which has been changed from last 2 years. There is no compulsion that it will be asked further on or not. Okay. सो हम लोगों को इसकी तैयारी तो करनी ही होगी बिकॉज सिलेबस में तो था ये. ओके. सो माधव, कैन वी सी द सेकेंड पेज, द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन? हाँ, दिस इज द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको अभी You एज can एन zoom. ऑप्शन देखा गया है बिकॉज. ओके. व्हाट माधव? And you can zoom to see एम the आई PPT. ऑडिबल टू यू? मैम आप जूम एम कर आई सकते हैं ऑडिबल टू पीपीटी यू देखने ऑल? के लिए. हेलो. Yes, students, you can zoom the you can zoom your screen. आप देख सकते हो अपनी पीपीटी. ओके, जूम करके. There is a PPT of sorry. There will be the question of reading comprehension, which is optional, but we will practice about it. Then there will be the question from parts of speeches. Okay, I have given you a set of questions. Have you all got that? Can you please message this? Yes, ma'am, we got all. Okay, hello? Okay, okay. So are you understanding what I'm trying to tell to you? Yes, yes. Can you please reply? Okay, okay, okay. ठीक है. फिर आप लोगों से क्वेश्चंस आएंगे पार्ट्स ऑफ स्पीचेस से, फिगर ऑफ स्पीचेस से, आइडम्स एंड फ्रेजेस से. ओके. द ऑल द पीपीटीज जो आप अभी देख पा रहे हो या फिर आपको दिखाई जाएंगी, जो नेक्स्ट है वो नाउन है, प्रोनाउन की है, वर्ब की है, एडवर्ब की है, एडजेक्टिव्स की है. बिकॉज जो एरर्स होते हैं ना, बेसिकली उसमें इन्हीं सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछी जाती है. एंड उसमें जो बेसिक फोकस होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस पे होता है. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इनफाइनाइट सोर्स है. ठीक है, उसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है. बस मैं आप लोगों को क्वेश्चंस दे सकती हूँ फॉर प्रैक्टिस. यू कैन जस्ट प्रैक्टिस फॉर दैट. ओके. सो मैं यहाँ पे बहुत बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीचेस कवर करूंगी आपके, एंड देन आई विल डिस्कस द टेंस. विदाउट टेंस आप लोग एरर्स नहीं कर पाओगे. ओके. और उसके लिए फिर आइटम्स एंड फ्रेजेस भी डिस्कस किए जाएंगे, क्वेश्चंस भी डिस्कस किए जाएंगे लेटर ऑन, जब मैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीचेस को कवर अप कर लूंगी. सो shall we start from noun? Are you all ready? Or do you have any problem with the syllabus? You can ask me.
बिकॉज द सिलेबस इज वेरी इजी। आप अगर बचपन से इंग्लिश पढ़ते आए हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस मेरे को आपकी चीजों को क्लियर करना है, बेसिकली फॉर द एरर सेक्शन, ओके, so that you can do all these questions which is going to be asked in your BA entrance. Synonyms और antonyms की चीजें मैं आपको शेयर कर दूंगी, ओके। Shall we start with the noun? Hello, can you please reply? Yes, yes, we can start. Yes, ma'am. Okay. So we are going to start the past parts of speeches. Do you know what is parts of speech? Uh, Actually, when we utter a sentence, we use different parts of speech in it. When we frame a sentence, there are lots of parts of speeches in it. It is full of noun, pronoun, verb, adverb in it. Okay. So we are going to, sorry. Okay. So I am giving you one example. When you eat biryani, you get different kinds of ingredients in it. Okay. So the ingredients of that are spices, rice, vegetables. So in this similar way, when we frame a sentence, we use different kinds of ingredients in it. That is noun, pronoun, adjective, adverb, verb, prepositions. Prepositions, students, are the uh, hello. Okay. We have learned from our name of a person, place or a thing. किसी भी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। यही हम लोगों को बचपन से पढ़ाया जाता है। आई एम गोइंग बाईलिंगुअल बिकॉज मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों को समझ में आएगा या नहीं आएगा। दैट बिकॉज आई एम गोइंग बाईलिंगुअल। तो आप समझने की कोशिश करो। अगर आप आईसीएसई से, सीबीएसई से हो, सो डोंट गेट ऑफेंडेड बिकॉज मेरा काम है आप लोगों को समझाना, ओके। सो व्हाई वी नीड अ नाउन टू लर्न? Because the name of everything in this world, either it is human, animal, angel, ghost, monkey, fox, love, hatred, friendship, all these things comes under noun. There are different parts of noun. Okay, in this page, you are getting the different types of noun. There is a common noun, proper noun, collective noun, abstract noun, and material noun. And there is also a subcategory in it. It is called countable noun and uncountable noun. So we are going to start with common noun. A name which is given for different nouns. Okay. कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन ऐसी चीज होती है, स्टूडेंट्स कैन यू आर यू देयर विथ पेन और कॉपी सो दैट यू कैन नोट व्हाट आई एम टेलिंग यू? कैन यू प्लीज रिप्लाई? आप इसको लिख लो, मैं जो आपको बता रही हूँ। ओके मैम। और अगर आपको कोई दिक्कत होती है, यू कैन डायरेक्टली आस्क इन द ग्रुप अबाउट दिस और इन द मैसेज बॉक्स, ओके। ओके मैम। सो व्हाट इज अ कॉमन नाउन? कॉमन नाउन बहुत सारी, मतलब जो कॉमन चीजें हैं ना, उनको बोला जाता है। बहुत सारी चीजों के लिए जो एक नाम दिया जाए उसे कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि हम लड़की बोले, ओके, then we are representing all the girls of this universe. Okay, दुनिया में जितनी सारी लड़कियां, इवन इन दिस यूनिवर्स जितनी सारी लड़कियां हैं, उन सारी लड़कियों को हम एक कॉमन नाम देते हैं, अ गर्ल। ओके, either you are hence it is a common name given to a person, place or a thing. When we say a city, okay,
तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द सिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड. आइदर इट इज न्यूयॉर्क, आइदर इट इज हैदराबाद, आइदर इट इज दिल्ली, आइदर इट इज वाराणसी. Okay, so a common name is given to all these things is called a common noun. We are in example, I am giving you the example, boys. Okay, all the boys in this world come under this category. City का example मैंने आपको दे ही दिया. Games, जब हम गेम्स की बात करते हैं तो बहुत सारे गेम्स हैं इस दुनिया में. ओके, हम खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, हम बास्केटबॉल खेलते हैं, वी प्ले बैडमिंटन, वी प्ले कैरम बोर्ड. देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गेम्स. बुक्स, बहुत सारे राइटर्स ने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं. इवन आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी बुक्स होती है, द बुक्स फ्रॉम डिफरेंट राइटर्स. तो वो सारी एक उन सारी चीजों को एक नाम दे दिया जाता है जिसको बुक बोलते हैं हम. कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, उसमें बहुत सारी वेराइटीज होती है. यू गेट पेप्सी, यू गेट कोका कोला, एंड देन फैंटा. ऐसी बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं. तो इन सारी चीजों को बस एक नाम जो दे दिया जाता है उसको कॉमन नाउन बोला जाता है. इवन वन नेम डिनोट डिफरेंट काइंड्स ऑफ थिंग्स. एंड व्हेन वी से, अब जब हम कंट्री की बात करते हैं, ओके, जब हम कंट्री की बात करते हैं तो वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स ऑल द कंट्रीज ऑफ दिस अर्थ. आइदर इंडिया, चाइना, जापान, श्रीलंका, जितनी भी कंट्रीज है वो एक नेम के अंदर फ्रेम हो जाती है जिसको हम कंट्री बोलते हैं. सो दीज थिंग्स रिप्रेजेंट द कॉमन नाउन. क्या आप लोगों को कॉमन नाउन समझ में आया? You can message me, you can message this in the message box. तो फिर मैं आगे proceed करूंगी to the another type of noun. Okay, are you all getting this? Okay, okay. Then आपका दूसरा कैटेगरी होता है proper noun. Okay, proper noun, what is this proper noun? It is an opposite of common noun. बहुत सारी चीजों में से जब एक चीज उठाया जाए और उसको कोई नाम दिया जाए. ओके, जब हम कॉमन नाउन की बात कर रहे थे तो एक चीज उठा रहे थे. मान लीजिए हम सिटी की बात कर रहे थे और सिटी में बहुत सारी चीजें आती है. जैसे कि सिटी में जैसे कि मैंने आपको अभी पहले एग्जाम्पल दिया था कि हैदराबाद मान लीजिए, दिल्ली मान लीजिए, देन यू कैन से न्यूयॉर्क. तो ये सारी एक कैटेगरी में आ जाती है. बट when we represent New York, what is this? ये एक इसकी एक अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. ओके, दैट इज प्रॉपर नाउन, जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी हो, जो बहुत सारी चीजों में से एक चीज उठाया जाए. ओके, जैसे बहुत सारे क्रिकेटर्स में से मैं महेंद्र सिंह धोनी का नाम लेती हूँ. ओके, दिस इज प्रॉपर नाउन. जब हम बहुत सारी कैटेगरीज में से एक इंसान का नाम ले, एक वस्तु का नाम ले, एक चीज का नाम ले, दिस इज प्रॉपर नाउन. व्हेन द पीपल डू एक्टिंग वी कॉल देम एक्टर्स. ओके, बट व्हेन वी पर्टिकुलरली से आलिया भट्ट, शाहरुख खान, वी आर पॉइंटिंग टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल हु इज एन एक्टर. ओके, जब बहुत सारे एक्टर्स में से हम एक एक्टर का नाम लेते हैं, जैसे मान लीजिए आलिया भट्ट हो गई, शाहरुख खान हो गया, तो उसमें ये आलिया भट्ट कौन है, ये शाहरुख खान कौन है, इसको हम क्या नाम देंगे? तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन बोलते हैं. Hence, the names like Alia Bhatt, Shah Rukh Khan come under the category of proper noun. उसी तरह तो हम इसका एक डेफिनेशन बनाते हैं कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु या चीज के नाम को प्रॉपर नाउन बोला जाता है. A proper noun refers to a specific name given to any person, place or a thing. Proper noun always begins with a capital letter. ये एक इसकी खासियत होती है कि अगर कोई सेंटेंस में प्रॉपर नाउन आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम किसी एक इंसान का, जैसे अमिताभ बच्चन का नाम लेते हैं. ओके,
द नेम ए ऑफ अमिताभ बच्चन, अब वो किसी भी सेंटेंस में आ रहा है तो वो कैपिटल लेटर में आएगा क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, हम उस एक इंडिविजुअल को बहुत एम्फेसाइज किए हैं इसलिए वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ये प्रॉपर नाउन की एक खासियत है। एग्जाम्पल्स में हम प्रॉपर नाउन की बहुत सारी दे सकते हैं, जैसे कि बहुत सारी फ्रेंचाइजी होती है जिसमें KFC आ गया, मैकडोनल्ड्स आ गया, तो इनमें पर्टिकुलरली KFC क्या है, एक अलग चीज, एक अलग खाने की चीज है। देन मैकडोनल्ड्स हो गया है, फिर बीकानेर वाला हम ऐसे अगर नाम ले सकते हैं तो ये एक इंडिविजुअल, ये एक अलग सी चीज हो जाती है। देन डिफरेंट पॉलिटिशियंस के अंदर अगर हम एक नाम सोनिया गांधी का ले लेते हैं, अमित शाह का लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू का लेते हैं, तो वो एक अलग एम्फेसिस देता है उस चीज को जो कि कॉमन नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है। डिफरेंट राइटर्स के बीच में अगर हम विलियम शेक्सपियर का नाम लेते हैं, ओके, इज अ वेरी फेमस राइटर, एवरीवन नोज हिम, ओके। देन जॉन मिल्टन, इनका पैराडाइज लॉस्ट बहुत ज्यादा फेमस है, ओके। तो अगर हम इनका नाम लेते हैं तो हम एक पर्टिकुलर एक राइटर का नाम ले रहे हैं, तो इसको एक प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में रखा जाएगा। देन फिर सिटीज में मैंने आपको बता ही दिया, बहुत सारे सीरियल्स आते हैं, शोज आते हैं, उसमें टॉम एंड जेरी एक स्पेसिफिक नेम ले लिया तो उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में उसको रखा जाएगा, ओके। क्या आप लोगों को प्रॉपर नाउन समझ में आया? सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर टू द नेक्स्ट नाउन, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ नाउन, ओके ओके। तो देन वी विल स्टार्ट विथ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव का मतलब क्या होता है? कलेक्ट करना, किसी चीज को इकट्ठा करना, ओके। तो कलेक्टिव नाउन में बेसिकली इसका मतलब ये हो गया कि these are the names given to represent group of people, animals or a thing। जो चीज ग्रुप में हो, जो चीज इकट्ठी हो, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रख देते हैं। कलेक्टिव नाउन कुछ खास नहीं है इसमें, मतलब आप नाम सुन के ये समझ जाओगे कि दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, ओके। तो इसके एग्जाम्पल्स में आते हैं, व्हेन वी से अ बंच ऑफ grapes, okay, when we see a bunch of grapes, मतलब grapes का गुच्छा। a class of students, बच्चों से भरी हुई क्लास। a flock of birds, a series of stories। a team of players, a team of players। the herd of cattle, the committee of members। इन सारे एग्जाम्पल्स में द बंच ऑफ ग्रेप्स में बंच, द क्लास ऑफ स्टूडेंट में क्लास, द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स में फ्लॉक, अ सीरीज ऑफ स्टोरीज में सीरीज, द टीम ऑफ प्लेयर्स में टीम। ये सब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये सब रिप्रेजेंट कर रहा है कि चीजें इकट्ठा हैं, वो एक ग्रुप है, एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग। तो इस चीज को हम कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में लेके आते हैं। तो क्या आप लोगों को कलेक्टिव नाउन समझ में आया? आप रिप्लाई कीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर ऑन, ओके। Then we are going to proceed in the abstract noun category. It is something which you can't see, taste, hear or touch। Abstract मतलब ये चीजें होती है ना जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, हम टेस्ट नहीं कर सकते, हम सुन नहीं सकते, हम उन चीजों को टच भी नहीं कर सकते, ओके। एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो अनछुई हो, जो ना देखी जाए, जिसको मतलब हम टेस्ट भी नहीं कर सकते। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बताती हूँ, लव, प्यार। यू कांट सी इट, यू कांट टेस्ट इट, यू कांट हेयर इट, नॉर यू कैन टच इट। हेट्रेड, इसमें भी यही चीज है, यू कांट सी इट, यू कांट टेस्ट इट, यू कांट हेयर इट और यू कांट टच इट। एंगर, जब आप लोगों को गुस्सा आता है, क्या आप उसको माप सकते हो?
क्या आप उसको देख सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, सुन सकते हो? नहीं कर सकते। जॉय, जब आप लोगों को अच्छा लगता है, जॉय। डिजायर, किसी चीज का डिजायर, यू कांट मेजर इट। गुडविल, इन सारी चीजों को हम देख भी नहीं सकते, टेस्ट भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, टच भी नहीं कर सकते। जो चीजें एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब उन चीजों को हम देख ही नहीं सकते, बस समझ सकते हैं अपने अंदर विथ आवर सेंसेस। तो इन सारी चीजों को एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर डाला जाता है। तो बेसिकली हमने 3 तरीके के नाउन पढ़े हैं अभी तक। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, 4 हो गए हैं एक्चुअली। कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, देन कलेक्टिव नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कॉमन नाउन में हमने ये पढ़ा कि कॉमन नाउन कहते किसको हैं। तो बहुत सारी चीजों को जो जिसको एक नाम दिया जाए, उन सारी चीजों को एक कैटेगरी में डाला जाता है जिनको कॉमन नाउन कहा जाता है। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन का एक अपोजिट होता है, मतलब कॉमन नाउन कॉमन हो गया, ओके, फॉर ऑल, बट प्रॉपर नाउन इज एन इंडिविजुअल, ओके, इसकी एक अपनी आइडेंटिटी होती है और इसको हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारी चीजों को जब जिस बहुत सारी चीजों में से जब एक चीज उठाते हैं, प्रॉपर, ओके, दिस इज प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन, आप नाम सुन के ही समझ जाएंगे कि दिस इज अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, जो चीजें इकट्ठी हो। एंड देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द थिंग्स व्हिच वी कांट सी, टेस्ट, हियर और टच, जो चीजों को हम कभी देख ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते, समझ सकते हैं एक्चुअली, सुन नहीं सकते, टेस्ट नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। इन सारी चीज ये सारी चीजें एक नाम, जिसको एक नाम दिया गया है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। द नेम गिवन टू फीलिंग और इमोशन, दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। So till now we have discussed 4 categories of noun. Have you all understood this? Okay. So we are going to proceed to the 5th noun, that is material noun. आप लोगों को नाम सुन के ही पता चल गया होगा कि मटेरियल, मटेरियल मतलब कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस, जिसको मटेरियल नाउन बोला जाता है। These are the names given to material substance. मटेरियल नाउन क्या होता है? ये एक नाम दिया गया है मटेरियल सब्सटेंस को, जो कि थिंग, एनिमल और प्लेस कुछ भी हो सकता है, ओके। These are the names given to the material substance or thing that are made up of something. Example, जब हम कोई मेटल का नाम लेते हैं, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, ओके, तो ये क्या है? ये एक मटेरियल है। इसको एक कॉमनली एक नाम दे दिया गया है अंडर द कैटेगरी ऑफ नाउन, इट इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसे कि हम कपड़ा, क्लोथ, ओके, डायमंड, ग्लास, फायर, वुड, टेबल, ये सारी चीजें किस में आएंगी? जो चीजें नॉन लिविंग है, जो चीज लिविंग ही नहीं है, नॉन लिविंग है, वो एक मटेरियल सब्सटेंस है, तो उनको एक नाम दिया गया है मटेरियल नाउन। फिर एक अलग कैटेगरी, देयर इज अ डिफरेंट अदर कैटेगरी ऑफ नाउन, दिस कॉल्ड there is different sub category of noun, okay, it is countable noun and uncountable noun. आप जैसे कि आप इस पीपीटी में देख पा रहे होगे, इज इट विजिबल टू यू ऑल? आई थिंक इट इज विजिबल टू मी, एंड सो आई कैन एज्यूम कि आप लोगों को दिख रहा होगा। तो काउंटेबल नाउन, आप नाम से ये समझ सकते हो कि काउंटेबल, द थिंग विच वी कैन काउंट, जिसको गिना जा सके, जिसको गिना जा सकता है, इसको काउंटेबल नाउन कहा जाता है। द नाउन्स विच आर काउंटेबल, जैसे कि एप्पल्स को आप काउंट कर सकते हो, चेयर्स को आप काउंट कर सकते हो, बैग्स, बॉटल्स, कंप्यूटर्स,
pens, everything in this world that we can count come under the category of countable noun. And there is also another subcategory that is uncountable noun. This is opposite of countable noun, जिसको गिना ना जा सके. ओके, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया में जिसको हम गिन नहीं सकते हैं. फीलिंग्स को भी नहीं गिन सकते हैं, इमोशंस को भी नहीं गिन सकते हैं, बट बहुत सारी फिजिकल चीजें भी हैं जिन चीजों को हम नहीं गिन सकते हैं. द थिंग्स विच आर अनकाउंटेबल. द एग्जाम्पल्स आर वेल्थ. ओके, आप अपने घर के धन को नहीं गिन सकते हैं. ओके, राइस, आप एक एक टुकड़ा चावल को नहीं गिन सकते हैं. वो आएगी तो आएगी, केजी में आएगी, ग्राम में आएगी, ऐसे आएगी. आप उसको एक एक टुकड़ा लेके आप गिनने जाओगे तो सदियां बीत जाएगी. यू इट कान बी काउंटेड. नॉलेज, आप किसी के नॉलेज को मेजर नहीं कर सकते हो. आप किसी के स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हो. जैसे कि 3 इडियट्स आप लोग सब लोगों ने तो देखा ही होगा. उसमें एक स्टूडेंट की डेथ हो जाती है तो वहां पे एक प्रोफेसर जो उसका डीन होता है उसको जाके जो एक्टर होता है मेन प्रोटैगनिस्ट, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, आई एम रिमेम्बरिंग हिज ओरिजिनल नेम इज आमिर खान. वो जाके बोलता है उनको कि अगर स्ट्रेस नापने की मीटर होती तो उससे पता चलता कि ये उसकी वजह से मरा है, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अदर थिंग. ओके, तो आप स्ट्रेस को मेजर नहीं कर सकते हो, आप शार्पनेस को मेजर नहीं कर सकते. कौन कितना तेज है, कौन कितना शार्प है, यू कैन मेजर इट. ओके, फिर नमक हो गया, फिर आप नाम ले ले ये चीनी को हो गया, इसको अलग अलग आप करके नहीं नाप सकते हो. तो दीज ऑल थिंग्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ अनकाउंटेबल नाउन. नाउन्स तो यहाँ पे आप मुझे लगता है कि खत्म हो गए हैं, बट दीज आर ऑल द बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ नाउन. वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन. नाउन का डेफिनेशन देख लिया हमने, कलेक्टिव नाउन देख लिया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लिया, मटेरियल नाउन देख लिया, काउंटेबल नाउन देख लिया, अनकाउंटेबल नाउन देख लिया, इनके एग्जाम्पल्स देख लिए. तो क्या मेरे को आपको इसके ऐसा तो नहीं है, ये एग्जाम में ऐसे तो नहीं पूछेगा कि टेल मी द डेफिनेशन ऑफ नाउन. यू आर नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि आप मेरे को कॉमन नाउन बताइए, आप मेरे को प्रॉपर नाउन बताइए. आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट यू कैन आप एरर्स बना सके, एरर्स को सॉल्व कर सके. आपको पता हो ऐसे रैंडमली क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं कि ये किस कैटेगरी में आए, तो आप लोगों को बेसिक नॉलेज इन सारी चीजों की बहुत इम्पोर्टेंट है. क्योंकि बच्चे पढ़ते पढ़ते 12 तक आते आते ये सारी चीजें बचपन में तो पढ़े ही होते हैं, इंग्लिश ग्रामर्स नो डाउट सारे बच्चे पढ़े होते हैं, बट बड़े होते होते ये सारी चीजें वैनिश होने लगती हैं. तो ये सारी चीजें रिवाइंड करा रही हूँ मैं, जस्ट बिकॉज आप एरर का जो सेक्शन आता है आप उसको सॉल्व कर पाओ. बिकॉज without the knowledge of noun, pronoun, verb, adverb, adjectives, pronoun, prepositions, interjections, बिना पूरी पार्ट ऑफ स्पीच, ओके, बिना पूरी पार्ट ऑफ स्पीच के नॉलेज के आप एरर सेक्शन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे. ओके, तो अभी तो मैं नाउन बताया और उसके बहुत सारे रूल्स भी होते हैं. ओके, so I want you to write this rule. Okay, मतलब मैं आपको समझाती हूँ, आपको जैसा समझ में आता है आप उसको अपने वे में अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट सेक्शंस बताएंगे. मैं आपको ऐसे ओवरथ्रो करूंगी कि नेक्स्ट सेक्शंस में क्या क्या हम लोग नेक्स्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द वेरी नेक्स्ट क्लास ऑफ योर्स. Here we go with the advanced part. Okay, we make a sentence. हम लोग सेंटेंस कैसे फ्रेम करते हैं, सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है. ओके, नाउन क्यों इम्पोर्टेंट है,
क्यों यूज कर रहे हैं नाउन, क्यों नाम, नाम क्यों चाहिए हमें नाम, कैसे हम लोग, जिस बिकॉज हम लोग कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं, मैं आप लोगों को बोल पा रही हूँ, कैसे बोल पा रही हूँ, सेंटेंस बना पा रही हूँ, कैसे बना पा रही हूँ। ओके, तो एक सेंटेंस का बेसिक जो फ्रेमवर्क होता है वो 3 चीजों से बनता है, दैट इज फ्रॉम सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। We make a sentence from a rule of subject plus verb plus object. Okay. What is here subject and what is here object? ये जो subject है और ये जो object है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देते हैं, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, ही इज कुकिंग, राम इज कुकिंग, राम इज मेकिंग मैगी, ऐसा कुछ करके एग्जाम्पल जब हम देते हैं, ओके, तो इसमें राम क्या है, मैगी क्या है, ओके, इट इज रेनिंग फ्रॉम ऑल द डे, ओके, तो इन सारी चीज, रेनिंग तो वर्ब हो गया, रेन, बट रेन इज नाउन, ओके। सब्जेक्ट, इसमें सीता क्या है, सीता इज प्लेइंग फुटबॉल, सीता, हु इज सीता, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश सीता, सीता इज अ सब्जेक्ट. And what is football? Football is a material noun, as we have discussed earlier. Material, the name of a substance. और जो सीता है वो एक particular name है. She is a proper noun, so that we can distinguish these kind of things from a sentence. What and तो इसीलिए noun बहुत ज्यादा important होता है. If the noun is singular, the verb will be singular. अगर noun singular हुआ, singular मतलब एक, तो verb भी एक के ही terms में होगा. If the noun is plural, plural means two or more than two, the verb will be plural. ये एक rule है, ये basically एक rule है जो एक sentence के framework में आता है. Okay. There are some words which are automatically plural but singular in nature. जैसे कि कुछ words ऐसे होते हैं, कुछ nouns ऐसे होते हैं, जो ऐसे nouns हैं जो कि automatically वो plural होते हैं, ठीक है, मतलब हम उनको देखेंगे कि वो plural के sense में है but होते वो singular हैं. जैसे कि sunglasses, when we utter a word sunglasses, हम ये सन ग्लास तो नहीं बोलते हैं, हम लोग सन ग्लासेस ही बोलते हैं. तो सन ग्लास क्या है, ये एक ही चीज है, बट हम उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं सन ग्लासेस. सीजर्स, जैसे कि हमने सीजर्स बोला, तो सीजर्स तो एक ही होता है बट हम उसको सीजर्स बोलते हैं, उसमें एस लगती है लास्ट में, SCISORS. ओके, तो ये क्या है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि होते तो सिंगुलर हैं बट उसको हम लोग प्लूरल के सेंस में देखते हैं. ओके, दीज आर ऑल, मतलब ये सारी चीजें तो आपके कॉमन सेंस, आप उस चीजों को देखोगे, आप उस सेंटेंसेस को देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि एरर कहाँ पे है. ओके, तो कुछ ऐसे वर्ड्स आ ही जाएंगे, आप लोग अपनी डेली लाइफ में उन चीजों को इस्तेमाल करते होंगे, तो आप उसको देखोगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि चलो ये तो सिंगुलर है बट ये प्लूरल के टर्म्स में इसे दिख रहा है कि सन ग्लासेस, इसमें एस लगा हुआ है बट दिस इज अ सिंगुलर थिंग. ओके, फिर हम लोग मैथ्स बोलते हैं, हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, न्यूज बोलते हैं, मैथ्स, व्हाट इज दिस मैथ्स, ये एक ही चीज है, इसमें एस लगा हुआ है. फिजिक्स, दिस इज अ वन थिंग बट इसमें एस लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब ये नहीं है एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल हो गया, ये एक ही चीज है, दिस इज अ सिंगुलर थिंग. न्यूज, हम लोग न्यूज की बात करते हैं तो न्यूज एक ही, एक सिंगुलर एक वर्ड है. ओके, S doesn't mean a word is plural. Recognize, we recognize it. I'm giving you some example. Okay, जैसे कि spectacles. S का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो वर्ड है वो ये प्लूरल हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल देते हैं कि स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स क्या होता है, दो ग्लासेस होते हैं, ठीक है, एक चश्मे में दो ग्लासेस होते हैं. सीजर्स क्या होता है, उसमें दो क्रॉपर्स होते हैं.
फिर हम लोग पीपल, चिल्ड्रेन, ये सारी चीजें जो यूज होती हैं ये सब सिंगुलर होती हैं, बट हम लोग इसको देखते तो क्या है, देखते हैं तो हमें लगता है कि ओ ये तो प्लूरल होगा, बट दिस इज अ सिंगुलर वर्ड। ये थोड़ी ऐसी चीजें जो कि आपको ऐसे मैं बता रही होंगी तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा कि ये क्या बता रही हैं, बट दीज आर ऑल थिंग्स वी गेट फ्रॉम आवर कॉमन सेंस। आप कोई सेंटेंस देखोगे, आप उसका फ्रेमवर्क देखोगे तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये चीज सिंगुलर है या प्लूरल। आई एम डिस्कसिंग व्हाट वर्ड इज सिंगुलर एंड व्हाट वर्ड इज प्लूरल एंड हाउ वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज इट। ओके, फिर अगर कोई कलेक्टिव नाउन सिंगुलर का सेंस दे तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। ओके, अदरवाइज प्लूरल। द टीम इज हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, द टीम इज हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस, अगर हम ये सेंटेंस देखते हैं, द टीम इज हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस, दिस इज अ कलेक्टिव नाउन, टीम इज अ कलेक्टिव नाउन, इसको हम लोग सिंगुलर के टर्म्स में लेंगे, इज हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट। ऐसे एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि ये सब सिंगुलर के टर्म्स में यूज किए जाएंगे कलेक्टिव नाउन को। ओके, और कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं, उसको उसके फ्रेमवर्क को देख के ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्लूरल के सेंस में हुआ है, दिस इज नॉट यूज्ड इन द सेंस ऑफ सिंगुलर। द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज। ओके, द टीम, सबकी तो एक एक पूरी टीम है, द टीम ऑफ 6 पीपल। इस 6 पीपल में ऐसा तो नहीं है ना कि वो सारे पीपल उसके रिश्तेदार हो, सारे टीम मेंबर्स के अलग अलग रिश्तेदार होते हैं, फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो जब ये सेंटेंस हम लोग लिखते हैं, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, तो यहाँ पे आर का यूज हो रहा है, द टीम आर। और लास्ट सेंटेंस में मैंने बताया था द टीम इज हेडिंग फॉर द प्रैक्टिस, टीम के साथ इज हो रहा है, मतलब पूरी एक टीम जा रही है प्रैक्टिस के लिए। और जब हम लोग दूसरा सेंटेंस यूज करते हैं, द टीम आर ईटिंग विद देयर फैमिलीज, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि टीम, पूरी टीम के अलग अलग मेंबर्स जा रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ खाना खाने के लिए। ओके, तो जब हम लोग किसी सेंटेंस को देखेंगे ना तो हमें अपने आप समझ में आ जाएगा कि उसको सिंगुलर टर्म्स में यूज करना है या उसको प्लूरल टर्म्स में यूज करना है। अब नाउन खत्म हो गया। ओके, देन क्या आप दूसरी पीपीटी दिखा सकते हैं, द थर्ड वन। हैव यू ऑल गॉट दिस, whatever I have uttered? Can you please mention in the message box? क्योंकि अगर मैं समझूंगी नहीं कि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया जो मैंने बताया, तो बस आप व्यास, आप ही बस रिप्लाई कर रहे हो। एंड अदिति, अदर देन दिस देयर आर, आई थिंक देयर आर अभी हैं, शिव पटेल, ओके, आस्था, ओके। तो हैव यू ऑल गॉट दिस नो? तो मैं समझ जाती हूँ कि आपको समझ में आ गया। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन जस्ट पिंच मी अप इन द ग्रुप। आप अपने क्वेश्चंस, आप अपनी क्वेरीज, जो जितनी भी चीजें हैं, आप अपने उसको मैसेज बॉक्स में डाल सकते हो। तो मैं सॉरी, इन द मैसेज बॉक्स तो ये नहीं होगा, ग्रुप में आप डाल सकते हो, तो मैं उस चीज को क्लियर कर दूंगी। अगर आपको इस सेक्शन में भी कुछ समझ में नहीं आया हो रिलेटेड टू द नाउन, मैं फिर आपको बता दूंगी नेक्स्ट सेक्शन में। आप बस बोलना मेरे को नेक्स्ट क्लास में कि मैम ये चीजें समझ में नहीं आई। आई एम जस्ट गिविंग यू द बेसिक नॉलेज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, ठीक है, क्योंकि आपको एरर सेक्शन में बहुत हेल्प होगा। आप सब जानते हैं, मुझे पता है आप सब नाउन जानते होंगे, आपके लिए ये बहुत इजी है। ओके, बट मैं इसलिए बता रही हूँ जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन कि आप भूले नहीं, चीजों को भूल जाते हैं, भूलने की चीजें होती हैं ये, क्योंकि आप बहुत अलग अलग बैकग्राउंड से होंगे, मैथ से होंगे, फिजिक्स से होंगे, अलग अलग कॉमर्स से होंगे, आर्ट्स से होंगे, पीसीएम ग्रुप से। ट्वेल्थ में तो अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर तो हम लोग बेसिकली 8 9 10 तक ही पढ़ते हैं, 11 12 के लिए तो काफी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन
ये चीजें अगर पूछी जाएंगी और एक थोड़ा सा भी माइनर मिस्टेक भी हो जाएगा तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और इंग्लिश बहुत इजी है, इसमें कुछ भी लर्न नहीं करना है, ये बस आपका कॉमन सेंस है क्योंकि आप इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हो। आपको ऐसे कोई राइटर्स का नाम तो पूछेगा ही नहीं, लिटरेचर का तो कोई सेक्शन ही नहीं है। जस्ट देयर इज स्पेलिंग एरर्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एंड देन आपको यही फिगर ऑफ स्पीचेस जो कि मैं आपको नेक्स्ट में अभी क्लियर कराऊंगी। फिगर ऑफ स्पीचेस नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी जिसमें कि ये सब आती हैं। फिगर ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीचेस और फिगर ऑफ स्पीचेस अलग अलग है। ओके, फिगर ऑफ स्पीचेस बेसिकली हमारे लिटरेचर से रिलेटेड होता है जिसमें कि सिमिलीज आती हैं, मेटाफर्स आते हैं, एलिट्रेशन आते हैं, एजनेंस आते हैं। आप लोगों ने तो ये सुना होगा ना, बेटी बॉट सम बटर बट द बटर वाज बिटर, सो बेटी बॉट सम बेटर बटर टू मेक द बिटर बटर बेटर। व्हाट इज दिस? द repetition of b. Okay, this is a kind of figure of speech, okay, known as alliteration. हम इन सारी चीजों को फिगर ऑफ स्पीचेस के अंदर पढ़ेंगे। बेसिकली तो 22 फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, बट आपको फिगर ऑफ स्पीचेस में सिमिलीज पढ़ने हैं, मेटाफर्स पढ़ने हैं, पर्सोनिफिकेशंस पढ़ने हैं। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो। ओके, तो मैं इन चीजों को फिर आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और अभी तो पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्लियर करूंगी, देन फिर आई विल डिस्कस द फिगर ऑफ स्पीचेस। फिर मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाऊंगी, बिकॉज बिना टेंस के कोई चीज, इंग्लिश ग्रामर ही अधूरी है। आप अगर टेंस नहीं जानोगे तो इंग्लिश ग्रामर, आप इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ओके, देन फिगर ऑफ स्पीचेस में पैराडॉक्स आ जाएगा, ऑक्सीमोरोन एंड इमेजरी। ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। यू कैन नोट डाउन, आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एलिटरेशन, एजनेंस, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरोन एंड इमेजरी, ये आपको फिगर ऑफ स्पीचेस में पूछे जाएंगे। ऐसे तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते हैं फ्रॉम लिटरेचर। इंग्लिश सेक्शन तो बेसिकली ग्रामर से ही रिलेटेड है, और वो भी बेसिक ग्रामर से। बट बेसिक ग्रामर भी धीरे धीरे इंसान के माइंड से वैनिश हो जाती है, तो इसको हम लोगों को फिर रीडेवलप करना है। और पार्ट्स ऑफ स्पीचेस में हम लोग आर्टिकल्स को भी ऐड करेंगे, क्योंकि बिकॉज द यूज ऑफ ए एंड द इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फ्रेमवर्क ऑफ अ सेंटेंस। और हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि ए, एन और द यूज कहाँ पे होता है। देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीचेस, प्रोनाउन। ओके, प्रोनाउन आप सब लोग जानते होंगे, मैं इन सारी चीजों को अभी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी। अभी मैंने नाउन को डिस्कस किया है। अभी ये प्रोनाउन, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, इंटरजेक्शंस, प्रीपोजिशंस, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट सेक्शन में, नेक्स्ट जो भी क्लास होगा, हमारा इंटरैक्शन होगा, हम उसमें डिस्कस करेंगे इन डिटेल। जस्ट मैं आपको ऊपर ऊपर ये सारी चीजों को बता देती हूँ कि आप लोगों को पढ़ना क्या है प्रोनाउंस में। आप लोगों को प्रोनाउंस तो पता ही होंगे। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं, उसको कैसे, कहाँ पे यूज किया जाता है, ये सारी चीज। जब हम एक सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है, कि राम ईट्स ब्रेड, ओके, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं राम इज गोइंग टू प्ले, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस बोलते हैं राम इज ईटिंग फूड, फिर हम नेक्स्ट सेंटेंस जब बोलते हैं कि राम इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो हम लोग इस सेंटेंस में राम 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 क्यों यूज कर रहे हैं। हम लोग तो इसके अलावा जब राम की जगह पे हम ये बोलेंगे कि राम इज ईटिंग ब्रेड, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ही इज गोइंग टू प्ले, अगर हम राम की जगह पे ही लगाएंगे, ही का यूज करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे, देन दैट ही इज कॉल्ड प्रोनाउन। जब कोई चीज नाउन के जगह पे यूज की जाती है, आइदर इट इज ही, आइदर इट इज शी, आइदर इट इज ई, आइदर इट, आइदर इट इज दे, ये सारी चीजें जब हम किसी एक नाउन, आइदर इन द नेम ऑफ अ प्लेस और अ पर्सन और अ थिंग, अगर हम इन सारी चीजों के
कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी अदर चीज को यूज करते हैं, किसी भी रिपीटेटिव सेंटेंस हम लोगों को सुनने में बहुत इरिटेटिंग लगेगा, राम 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 बार बार सुनेंगे। आई एम नॉट ये कुछ ऐसा वो नहीं है कि बीजेपी वाली बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, राम राम। बट अगर हम ये सारी चीजें सुनेंगे एक ही बार तो हम लोगों को बहुत अजीब लगेगा। हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं, जस्ट लाइक मोहन। सो मोहन इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। लेट्स टेक सम अनदर नेम, शायन। ओके, ये नहीं है स्पिरिचुअल, ठीक है। तो अगर हम किसी एक, मान लो शायन को, राम की जगह शायन को डिस्प्लेस ले आते हैं, तो हम रिपीटेटिव यूज ऑफ अ थिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू थ्रू द यूज ऑफ अ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन होता है, कुछ इंटरोगेटिव प्रोनाउन होता है, कुछ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, देन फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, देन फिर रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पे कुछ एरर आ गया है पीपीटी में, प्रोनाउन की जगह नाउन लिखा गया है, बट लेट्स नॉट टेक इट सीरियसली, इसको बदल दिया जाएगा। पर्सनल प्रोनाउन में बेसिकली आई का यूज करते हैं हम, यू का यूज करते हैं हम, वी का यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं। पर्सनल चीज है, मतलब आई, मैं, यू, वी, दे, ये सारी चीजें पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आती है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर हु, वेयर, विच, ये सारी जो क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है दिस, दैट, देयर, ये सारी चीज प्रोनाउन के अंदर आएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आएगा रिफ्लेक्स एक्शन, जो ये सारी चीजें होती है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, ये हमारे अंदर की चीजें। रिलेटिव प्रोनाउन में आएगा हुएवर, ये सारी चीजें। इनडेफिनिट प्रोनाउन में हम लोग ले लेते हैं इनडेफिनिट, जो कि डेफिनिट ही ना हो, जिनका कोई मतलब वो डेफिनेट हो ही नहीं। अनदर, एनी, मतलब उनका कोई, बोलते हैं ना कि वो डेफिनेट ना हो, उनका कोई हेलो, डेफिनेट प्रोनाउन के अंदर आ जाएगा अनदर, एनी, एनीवन, फ्यू, मेनी, ओके, दैट आर नॉट सर्टेन, ठीक है। उसके बाद कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, यहाँ पे ये वर्ब्स हैं। वर्ब्स तो आप लोग जानते ही होंगे कि किसी चीज जो कि एक्शन को शो करते हैं, द वर्ड विच शोज द एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग इज कॉल्ड वर्ब। जो चीज किसी एक्शन को बताते हैं उन चीजों को हम वर्ब बोलते हैं। ओके, तो सेंटेंस में हम लोग किसी भी सेंटेंस के फ्रेमवर्क में वर्ब इज वेरी इंपॉर्टेंट। अर्लियर मैंने आपको एक चीज बताई थी कि एक सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट यूज होता है। तो ये जो बीच का पार्ट है ना, इट शोज सम एक्शन और द स्टेट ऑफ बीइंग, दिस इज कॉल्ड वर्ब। वर्ब क्या होता है? जब हम बोलते हैं, व्हेन वी स्पीक, गो, लर्न, वॉक, जो कि कोई एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि हम चीजें कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कुछ याद कर रहे हैं, वी वॉक, ये सारी चीजें जो कि हमारे होने से कुछ एक्शंस दिखा रही हैं, हमारे अंदर की कोई एक्शन को शो कर रही हैं। वर्ब दो टाइप की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, एक और दूसरी होती है एक्शन और मेन वर्ब। तो जो हेल्पिंग वर्ब है उनकी भी सब कैटेगरीज होती है, जैसे ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गए, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गए। ये दोनों जो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये दोनों एक्शन और मेन वर्ब के अंदर आ जाते हैं। फिर सेकंड कैटेगरी होती है फाइनाइट और इनफाइनाइट वर्ब्स की। तो फाइनाइट वर्ब्स की तो कोई सब कैटेगरी नहीं होती है, बट वी हैव दी सब कैटेगरीज ऑफ इनफाइनाइट वर्ब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफाइनाइट, gerund and participle, these three things are very important in a framework of a sentence. Infinite, gerund and participle, we will
discuss this later on in the verb section when we will discuss the verb. Okay. फिर can we have the next slide please? देन एडजेक्टिव आती है. एडजेक्टिव क्या होती है? किसी चीज, द एडजेक्टिव आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और द प्रोनाउन. जो एक नाउन और एक प्रोनाउन की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कही जाती है. वो बहुत अच्छी लड़की है, तो अच्छी, बहुत अच्छी, ये क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गई जो कि लड़की की विशेषता बता रहा है. लड़की, अ गर्ल, एक लड़की की विशेषता बताए. मतलब द थिंग, द वर्ड्स विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब और मॉडिफाई द नाउन और द प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडजेक्टिव बोलते हैं. ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, बस इसको मुझको आप लोगों को एलेबोरेट करके एक प्रॉपर मैनर में बताना है. इसमें डिफरेंट डिग्रीज होती हैं एडजेक्टिव की. एब्सोल्यूट डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है और सुपरलेटिव डिग्री होती है. एब्सोल्यूट डिग्री में जब हम बोलते हैं कि एक वर्ड लेते हैं रिच, और कंपैरेटिव डिग्री में बोलेंगे उसको हम लोग रिचर, और उसको सुपरलेटिव डिग्री में वो रिचेस्ट हो जाता है. जब हम लोग एक, ये एक नॉर्मल सा वर्ड है जिसको हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, करते हैं. गुड, good is absolute degree. When we use best, this is comparative degree. And when we use, when we use better, this is comparative degree. And when we use best, good, better, best, all this come under the category of absolute degree, comparative degree and superlative degree respectively. Good, better and best. ठीक है, ये एडजेक्टिव हो गया. Can we have the next slide please? And here comes the adverb. Okay, giving extra information related to the verb. जब मैंने अभी आपको लास्ट सेंटेंस बोला था कि वो बहुत अच्छी लड़की है, ओके, तो वो अच्छी लड़की है. दिस इज, व्हाट इज दिस? अच्छी. अच्छी तो एक वो लड़की की विशेषता बता रहा है कि वो अच्छी लड़की है. ठीक है, तो अच्छी क्या हो गया? वो एडजेक्टिव हो गया. लेकिन उस एडजेक्टिव की विशेषता बताए, मतलब उसको और एम्फेसाइज कर दे, उसके बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे. बहुत अच्छी लड़की, बहुत, जब यहाँ पे बहुत आ जाता है, दिस इज कॉल्ड एडवर्ब. ओके, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और describes or modifies a verb, an adjective or another verb. ठीक है, my sister is extremely clever. ठीक है, what is this extremely? extremely is adverb जो कि एक verb को उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे. एक वर्ब के बारे में एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे, उसको बोलते हैं एडवर्ब. तो एक्सट्रीमली क्या हो गया? ये वर्ब के बारे में. माई सिस्टर इज एक्सट्रीमली क्लेवर, तो यहाँ पे जो क्लेवर है उसके बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है. शी इज एक्सट्रीमली क्लेवर एंड दिस इज एडवर्ब. वी विल डिस्कस द लेटर सेक्शन. डू वी हैव अनदर स्लाइड्स ऑल्सो? आप दिखा सकते हो कि बाकी स्लाइड्स में क्या क्या चीजें हैं, अगर हैं तो आप दिखा दीजिए. एंड दिस इज, थैंक यू. ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया, नाउन को किया, प्रोनाउन को किया, एडजेक्टिव को किया, एडवर्ब को किया. बेसिकली हम लोगों ने नाउन को काफी अच्छे से देख लिया, उसका एक्सप्लेन्ड डिटेल्स. ओके, एंड देन फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको प्रोनाउन पढ़ाऊंगी और उसके बाद वर्ब, उसके बाद एडवर्ब, इन सारी चीजों को कवर अप करूंगी. और जब तक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्लियर नहीं हो जाते हैं फिर हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ अभी नहीं बढ़ेंगे. पहले पार्ट्स ऑफ स्पीचेस क्लियर करेंगे, देन फिर हम ये फिगर ऑफ स्पीचेस पे आएंगे. देन वी विल डिस्कस टेंस. टेंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन से डील करेंगे. ओके, कि क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं. और मैंने आप लोगों को कुछ नोट, मतलब एज इन क्वेश्चंस दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो. आप लोग उसको देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रामर से रिलेटेड, ये सारी चीजों से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस होते हैं. ऐसा नहीं बोल रही मैं कि
नाउन से ही पूरा पूछ लेगा, जो मैंने आपको बताया वर्ब से ही पूरा पूछ लेगा, प्रीपोजिशन से ही पूरा पूछेगा, लेकिन पूछेगा तो, इसलिए बताना जरूरी है। और आप खुद ही स्मार्ट हो तो आप तो सीख जाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।